बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिस सिद्रा इकबाल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर. We are going to the next topic in the subject of foreign policy. We are going to discuss. Let's start the lecture. Here is the continuation of the topic Cold War. In first lecture we discussed the what is Cold War, meaning and objectives, and now nature of the Cold War and the first phase of the Cold War. Now we are going to start the second phase, which is from 1963 to 78, from coexistent to detent. In second phase, both sides realized that the importance of world peace in the age of nuclear threat. When they feel that the nuclear threat, so they realize that the peace of the world is so important. The epic witnessed the relaxation of strained national relations between USA and USSR. So they tried to relax their relations between both superpowers. So both superpowers tried to relax. The Cold War was fought and moderated inwards at summit meetings between the leader and in treaties summit that began the losing of attention as attained. So the words are in moderated in words. जब कोई भी मीटिंग्स होती थी, बड़े बड़े जो दोनों सुपर पावर्स के लीडर्स हैं, कोई भी सुमित होता था या कोई भी टेरिटरीज से की जाती थी, तो ये इसमें मतलब होने लगा आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डिटेंट की तरफ हुआ, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो बोथ पावर्स हैं, जो दोनों सुपर पावर्स थी, तो वर्ल्ड पीस जो है न्यूक्लियर थ्रेट के अंदर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उन्होंने अपने रिलेशंस पर फोकस किया. Detent is the name given to a period of improved relation between the United States and the Soviet Union that began tentatively in 1971 and took decisive form when President Richard M. Nixon visited the Secretary General of the Soviet Communist Party, Leonid I. Brezhnev in Moscow, May 1972. मतलब ये वो पीरियड है जब वो दो बड़े लीडर रिचर्ड एम निक्सन और लियोनार्ड आई ब्रेजनेव जो है वो 1972 में मई में मॉस्को में उनकी मुलाकात होती है. तो दे टुक डिसाइसिव डिसीजन फॉर द relaxation in their relations. Extended detent, a strategy that seeks to deter an enemy from attacking one's allies. Leakage strategies, Nixon Doctrine. Linkage was a policy pursued by the United States of America, championed by Richard Nixon and Henry Kissinger during the 1970s period of Cold War. Detent which aimed to persuade the Soviet Union and Communist China to cooperate in restraining revolutions in the Third World in return for concessions in nuclear and economic fields. So, in 1963, a problem which they have to face is Cuban Missile Crisis. Decisively established hotlines between the two superpowers. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेसिकली रशिया जो है
उसने क्यूबा के अंदर अपने मिसाइल जो हैं वो कर लिए थे। क्यूबा यूएसए के बिल्कुल करीब एक मुल्क है, ठीक है। तो वो यूएसए से डर गया था और यूएसए ने उसको अल्टीमेटम दिया कि आप इसको यहाँ से हटाएं, क्योंकि वो रशिया का वो ये एम समझ रहे थे कि वो क्यूबा के ज़रिए यूएसए को अटैक करना चाहते हैं। तो दे गेव देम अल्टीमेटम डैट यहाँ से रिमूव करें, अदरवाइज़ हम रशिया पर अटैक करेंगे। लिंकेज स्ट्रेटजी 1963, बोथ एग्रीड टू ओनली यूज़ अंडरग्राउंड टेस्ट फॉर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। अब लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, अब जो टेस्ट थे अब उसके लिए भी दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि लिमिट टेस्ट बैंड ट्रीटी के नाम से जो मशहूर हुआ। इम्प्रूवमेंट ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका इन 1971, अब दोनों के दरमियान, चाइना और अमेरिका के दरमियान 1971 में म्यूचुअल रिलेशनशिप्स जो थे उनमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। द टाइम पीरियड फ्रॉम 1970 to 1979 is also described as the decline of Cold War and period of detent। असल में जो 97 से 1979 का जो टाइम पीरियड है उसमें भी ये मतलब चीज़ एक डिस्क्राइब की गई कि या इस टाइम पीरियड को भी ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि इसमें कोल्ड वॉर जो है वो उसका डिक्लाइन शुरू होता है और जो पीरियड ऑफ डेटेंट है वो वाज़ेह तौर पे सामने आता है या वो स्टार्ट होता है। क्योंकि 1971 में भी थ्रू चाइना जो है, चाइना ने अमेरिका का साथ दिया था और इनकी मतलब चाइना जो है उसने सपोर्ट करते हुए दोनों के जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। चाइना और अमेरिका के आपस के रिलेशंस जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो एक पीक लेवल की उन्होंने ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो डेवलप किए थे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड फेज ऑफ द कोल्ड वॉर, which is from 1979 to 1991. That's also Vietnam War from the third phase 1979 to 1991, from renewed confrontation to approachment, free rapprochement. Detent was challenged by Soviet intervention in Afghanistan in 1979, because in third phase Russia intervened in Afghanistan. Russia claimed that Afghanistan, यहाँ हुआ क्या था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब तालिबान का ज़ोर बढ़ा है तो अफ़गानिस्तान ने रशिया से मदद मांगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान रशिया का मतलब एक अलाई इन अ सेंस, और मतलब उनका आपस में एक सपोर्ट था। तो उस वजह से अफ़गानिस्तान ने इनको कहा कि आप इंटरवीन करें, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर की जो सिचुएशन है वो ख़ासी ख़राब हो रही है। तो कार्टर डॉक्ट्राइन जनवरी 1980 डिक्लेयरिंग यूएस विलिंगनेस टू यूज़ फोर्स इफ़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट यूएस इंटरेस्ट इन द पर्शियन गोल्फ। अब यहाँ पे यूएसए को एक गलत फहमी होती है, वो ये समझते हैं कि सोवियत इंटरवेंशन जो अफ़गानिस्तान में है ये बेसिकली पर्शियन गोल्फ में यूएसए के इंटरेस्ट को अटैक करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने कार्टर डॉक्ट्राइन लेकर आए जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि हम मुकम्मल तौर पे फोर्स यूज़ करेंगे पर्शियन गोल्फ के अंदर यूएसए के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यूएसए का ख्याल ये था कि रशिया जो है वो अफ़गानिस्तान में इंटरवीन करके बेसिकली यूएसए के जो इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। दैट्स वाई उसने कहा कि अगर
और ये अपने पर्शियन गोल्फ के अंदर यूएसए का ख्याल था कि रशिया पर्शियन गोल्फ के अंदर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना चाह रहा है। एक कंट्री के साथ जो है एक आज़ाद मुल्क में ये इंटरवीन करके उस पर कब्ज़ा करके ये पर्शियन गोल्फ में अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहा है, और इससे जो यूएसए के इंटरेस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूएसए ने विलिंगली फोर्स यूज़ करने के लिए विलिंग था। ये एक उसने कार्टर डॉक्ट्राइन में डिक्लेयर किया। 1980 Summer Olympic of Moscow were boycotted by more than 60 countries to protect the Soviet invention in Afghanistan. अब सोवियत यूनियन का जो इंटरवेंशन था इन अफ़गानिस्तान, इट आल्सो प्रोटेस्टेड बाय द इन protest against it. 60 countries protest and they boycotted the Summer Olympic of Moscow in 1980. In 1983, Ronald Reagan branded USSR as evil empire. रोनाल्ड रेगन ने ब्रांडेड किया या मतलब उसको कहा कि यूएसएसआर जो है वो एक इवल एम्पायर है। वो कैसे एक आज़ाद मुल्क के अंदर अफ़गानिस्तान जो एक मुकम्मल स्टेट है, आज़ाद स्टेट है, उसके अंदर इंटरवीन करके उसके इंटरनल मैटर की वजह से, तो इस वजह से उन्होंने यूएसएसआर को एक इवल एम्पायर का ख़िताब दिया। 1984 The year saw another boycott of the Summer Olympic held in Los Angeles. Near 40 countries abstained from the Olympics. तकरीबन 14 मुल्क जो हैं उन्होंने ओलंपिक से बाहर हो गए, उन्होंने बायकॉट किया। बेसिकली ये अफ़गानिस्तान पर जो अटैक था, इंटरवीन था अफ़गानिस्तान में, ये वर्ल्ड वाइडली बायकॉट मतलब प्रोटेस्ट किया गया इसके ख़िलाफ़। वर्ल्ड वाइडली लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। तो यूएसएसआर में भी रोनाल्ड रेगन ने भी ब्रांड किया यूएसएसआर को एज इवल एम्पायर। तो यूएसएसआर को अच्छा खासा एक जो क्रिटिसिज्म है उसका सामना करना पड़ा। रेगन डॉक्ट्राइन, यूएस प्लेज टू सपोर्ट एंटी कम्युनिस्ट इंसर्जेंट्स एंड ओवरवेलम द ग्लोबल इन्फ्लुएंस of Soviet Union during the final year of Cold War. यूएस जो है अब वो सपोर्ट कर रहा था एंटी कम्युनिस्ट सर्जेंट्स को, ओवरवेलम कर रहा था द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ कोल्ड वॉर। चेंजेस इन रशिया, मिखाइल गोर्बाचेव assumed the leadership of Soviet Union. He resolved to reduce the tension between the East and West and between the East and West. अब मिखाइल गोर्बाचेव ख़ास तौर पे रशिया ने जो इंटरवीन किया था अफ़गानिस्तान के अंदर, एक तो वो वर्ल्ड वाइडली क्रिटिसिज्म भी रशिया को सहना पड़ा, और इस वजह से रशिया के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े। इंटरनली रशिया को एक क्रिटिसिज्म मिला। मिखाइल गोर्बाचेव जो है उसने ट्राई टू रिजॉल्व टू रिड्यूस द टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। मिखाइल गोर्बाचेव एज अर्ली एज द मिड 1980s set in motions two domestic processes: Galsonist political openness and economic रिस्ट्रक्चरिंग। उसने लोगों को बेसिकली ये पॉइंट दिया कि दे हैव द राइट टू पॉलिटिकल ओपननेस एंड इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। गोर्बाचेव डोमेस्टिक रिफॉर्म्स आल्सो लेड टू चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ सोवियत फॉरेन पॉलिसी। अब गोर्बाचेव जो हैं इन्होंने रिफॉर्म, जो डोमेस्टिक हम कहते हैं इंटरनल रिफॉर्म्स, जो रशिया के अंदर रिफॉर्म्स की, उन्होंने सोवियत की फॉरेन पॉलिसी की भी ओरिएंटेशंस को चेंज किया। He suggested that numbers of the UN Security Councils should become the guarantor of regional security.
कहा कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको रीजनल सिक्योरिटी की गारंटी देने के लिए गारंटर बनना चाहिए, जस्ट किया। दिसंबर 1991 दिस इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इनटू इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। अब सोवियत यूनियन को जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो गई उसकी इनटू इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। सो द पोस्ट कोल्ड वॉर, द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, इट सिंबलाइज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। अब एक नया मतलब वो जो होता है उसमें जो बेसिकली जो गोरबेच अंदर पॉलिसीज कर रहा था, जो एक नई पॉलिसीज हुई थी, उसकी वजह से अच्छा खासा जो है वो सोवियत यूनियन वीक होता है और वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और यूएसएसआर टूट जाता है, जिसकी वजह से यूएसएसआर जो है वो टूटने की वजह से जो वो वीक हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेन फैक्टर समझा गया कोल्ड वॉर के ख़त्म होने का वो थी फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। वो वॉर जो फर्स्ट फेज़ में हमने पढ़ा कि वॉर बनाई गई थी वो अब आके यहाँ पे ख़त्म होती है और इट सिम्बलाइज दैट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर केम, एक नया जो है वर्ल्ड ऑर्डर बनता है। द डीपर रियलिटी ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वॉज द यूनाइटेड स्टेट इमर्जेंस एज द सिंगल ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। कि जो यूएसए है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स की इमरजेंस होती है एज द सिंगल ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। यूएसएसआर टूट जाता है, रशिया कमज़ोर हो जाता है और रशिया सुपर पावर नहीं रहता और यूएसए जो है वो कैपिटलिज्म थेरी के साथ पूरी दुनिया में प्रिवेल करता है, जो कि अभी तक एग्जिस्ट कर रही है और यूएसए जो है वो सुप्रीम सुपर पावर बनता है पूरी दुनिया का। अब यहाँ अगर देखा जाए थोड़ा सा हम इसको अगर सम अप करें या हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो था या वो सबसे बड़ी गलती जो थी वो यूएसएसआर की थी टू इंटरवीन इन अफ़गानिस्तान। इसने वर्ल्ड वाइडली इसको क्रिटिसिज्म का एक तो शिकार किया और दूसरा वो बुरी तरह से जो है इंटरनली प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई, ठीक है। उससे नई पॉलिसीज़ जब लाएंगी तो उनके इंटेंशंस और उनके ओरिएंटेशन में चेंजिंग्स आई, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से रशिया जो है वो सुपर पावर नहीं रहता और अमेरिका जो है वो सुप्रीम सुपर पावर की लीड में आ जाता है और कैपिटलिज्म को आफ्टर द डेकेड्स एंड डेकेड पास एंड यूएसए सक्सेसफुल और बिकेम सक्सेसफुल टू पास द to prevail his theory of capitalism worldwidely. So this is the Cold War, which we have to divide, which we divided into two lectures. We discussed what is Cold War, the first phase, the second phase and third phase, and the end of the war. And at the end of the war the USA became the super power of the world, and they also created problem for Afghanistan. But when USSR intervened in Afghanistan, USA used it as a conflictual that a free state does not need the intervention of USSR, but USSR broke, and these all elements gave the benefit to the USA, and USA became the sole superpower of the world. I hope you can understand, students. If you have any problem, if you have any query, if you have any doubt while listening the lecture, you can text me or you can ask me anytime. I'm here for you
I hope you understand the Cold War, which is just a wordy war. There is no weapon use. So, hopefully, you will get the concept. I hope you can understand. Khuda Hafiz.